Hello, good morning, friends. Today we are going to share the third chapter of Strength of Material, which is known as Moment of Inertia. Now, this moment of inertia has two parts. One is moment, and other is inertia. The moment is the force into some distance, and inertia means moment is doing some turning moment. It is turning something, and inertia means it is the effect by which virtue of which the things are trying to keep their position, whatever, whether it is moving, then it will try to keep on moving, and if it is in stationary position, it will try to be stationary. So moment of inertia has two parts: moment, turning moment, and inertia means it is resisting something. So definition wise अगर देखें, it is the moment required by a solid body to overcome its resistance to rotation. That means अगर कोई body rotation कर रही है, तो the moment required by that body to overcome its resistance to rotation. That means it is trying to stop from the rotation. It is resistance of bending moment of a beam. दूसरी तरह से मैंने कहा, because it is a moment, तो beam की केस में we can say bending moment also. Now there may be two cases. One is that it may be the body may be solid, and other case may be that it may be lamina. And if it is a solid, it is known as second moment of mass. Second moment of mass कहा जाता है. तो उसकी वैल्यू जो है that is m into r square, where r is the radius of gyration. So in case of solid, it is m into r, and it is known as second moment of mass. In case of lamina जो plane है जिनका कोई weight नहीं है, तो उनके केस में second moment of area कहा जाता है, और that is a into r square. R is radius of gyration, and its units are kilogram meter square or meter 4. Now if this is second moment of area, तो इसके units होंगे a into a is meter square, and r square again meter square, तो meter square into meter square is meter 4. And in case of second moment of mass, mass is kilogram, and meter square r square के लिए. So perpendicular axis theorem, there is one theorem which is known as perpendicular axis theorem. What it says, the moment of inertia of a plane area about an axis normal to the plane is equal to the sum of moments of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the plane and passing through the given axis. In other words, moment of inertia is izz. That means it is normal to the plane. जो moment of inertia हम calculate कर रहे हैं, it is the sum of the perpendicular axis जो ixx और iyy है, उनके sum के बराबर होता है. Then there is one more theorem which is known as parallel axis theorem. It is it can also be called as transfer axis theorem. ट्रांसफर एक्सिस मींस कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक बॉडी लेते हैं, लेमिना लेते हैं, and we know that it has some value of moment of inertia, but for calculating it for from some other axis, we have to transfer that moment of inertia to that axis, because जो moment of inertia, it is calculated at the center of gravity. Center of gravity, you know, where the whole mass of the body is assumed to be lying. तो वहां पे सेंटर जो है, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसको हम शिफ्ट करते हैं किसी और एक्सिस पे, तो उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. नाउ हाउ दिस इज डन? The moment of area of an object about an axis parallel to the centroidal axis. Centroidal axis, जो centroidal axis है, उससे पैरेलल में अगर हमने ट्रांसफर करना है, then it is the sum of moment of inertia about its centroidal axis. Centroidal axis के along जो sum of moment of inertia है, plus
the product of area with the square of distance of CG from the reference axis। यहाँ पे देखिए इक्वेशन भी बनाई गई है इसकी, IXX, ये देखिए एक एक्सिस है IXX। अगर हम यहाँ पे एक कोई एक्सिस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया गया A डैश लिया गया, तो उसके अराउंड अगर हमने लेना है तो इट इज द सम ऑफ द IG इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी C जो है, इसके अराउंड जो IG निकलेगा प्लस A इंटू डी स्क्वायर, वेयर A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी and D is the perpendicular distance between the centroidal and the parallel axis। ये D जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, D जो है वो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस से जो उस एक्सिस का है जहां पे हमने रेफरेंस शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, उससे जो डिस्टेंस है वो है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको याद करनी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, IXX is equal to IG plus AD square। हमारे जो न्यूमेरिकल्स निकलेंगे वो सारे इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे कैलकुलेट हुए हैं, आपके डेरिवेशन नहीं है, बट देखिए क्या है, वी नो दैट हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं DA। Consider the moment of inertia of an area A with respect to an axis A dash। यहाँ से हमने निकालना है, तो DA को निकालना है, denoted by Y is the distance from an element of area DA to AA। DA का यहाँ से अगर निकालें तो Y डैश हम मान लेते हैं कि Y डैश उसका डिस्टेंस है, तो IX क्या होगा, हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, तो सेकंड मोमेंट क्या होगा, वाई स्क्वायर इज द डिस्टेंस, सेकंड है क्योंकि, तो वाई स्क्वायर होगा। अदरवाइज फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया नहीं है। फर्स्ट मोमेंट होता है तो DA इंटू वाई होता है, लेकिन सेकंड मोमेंट है तो वाई स्क्वायर इंटू DA एरिया का है, तो DA इज एरिया, तो IX इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू DA। अब इसको देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द एक्स अबाउट द AA प्लेन। तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर DA जो है, वाई स्क्वायर DA मैंने बताया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने एक छोटा सा एरिया लिया था, पूरा को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to H। 0 to H जो है हमारी हाइट है, 0 to H हाइट है, एंड 0 to B ब्रेड्थ है हमारी। यहाँ पे देखिए नीचे 0 to B है, ये हमारी ब्रेड्थ है, तो इनको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आप जानते हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ सकते हैं, तो इसका फाइनल वैल्यू विल बी BH क्यूब बाई 3 या BD क्यूब। B इज डेप्थ, डेप्थ कह सकते हैं, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, BH क्यूब बाई 3 और BD क्यूब बाई 3। नाउ अब ये जो है हमारा, दिस वॉज, अगर हम सेंट्रोइडल पे निकालने हैं तो सेंट्रोइडल पे हमें -H/2 से लेकर +H/2 तक देखना है, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस पे लेना है तो -H/2 से लेकर +H/2 से। तो अगर इनको इस लिमिट्स पर इंटीग्रेट करेंगे, आपको इंटीग्रेशन आती होगी तो थोड़ा सा आप जानते होंगे कि फाइनल फार्मूला हमारा निकलेगा BH क्यूब बाई 12 या BD क्यूब बाई 12। एक रेक्टेंगल के लिए ये फार्मूला बनता है। तो अगर कहीं और इसको शिफ्ट करना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारा यही निकलता है, IX बार प्लस D स्क्वायर A। तो इसको हम BH क्यूब बाई 3 पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट कर सकते हैं बाहर की एक्सिस पे, अगर बाहर के एक्सिस पे शिफ्ट करना है। अगर सेंट्रोइडल पे है तो हमारा सिंपल फार्मूला है BD क्यूब बाई 12 या BH क्यूब बाई 12, लेकिन नीचे के शिफ्ट एक्सिस पे अगर निकालना है तो BH क्यूब बाई 3 वहां पे निकलता है। अब पैरेलल एक्सिस क्यों, recall that the method for finding centroids of composite body, हम क्या करते थे, एक टेबल टेक्निक यूज करते थे, टेबल बनाते थे, छोटे छोटे डायग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे, एंड इसी तरह से ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी भी करेंगे। सिमिलर टेक्निक टेबल मेथड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए टेबल मेथड में शायद आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, अलग अलग बॉडीज में उनको डिवाइड कर लेते थे, 1 2 3 इस तरह फिगर कर लेते थे, जो कि सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर होते थे, जो जिनके की हमें एरिया के भी फार्मूले पता है, सेंट्रॉइड के भी फार्मूले पता है। तो A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, Y इज द सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस,
उसका सेंट्रोइडल डिस्क कहाँ है, एक रेफरेंस लाइन से हम ले लेते हैं और उसको y1 a1 मल्टीप्लाई करेंगे। I जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है। d1 क्या है, di इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। तो जो हमने बॉडी ली है उसका मेन से कितना डिस्टेंस है, मेन वाले के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, वो हमारा डी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार निकलेगा। और उसको डी और डी स्क्वायर, बिकॉज हमारा जो फार्मूला है वो यही है कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बनेगा डी स्क्वायर इंटू ए। तो डी स्क्वायर इंटू ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये इस तरह का हम टेबल बना देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे वाई बार। वाई बार ज्यादातर वैसे वाई बार ही निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा कि वो सिमेट्रिकल होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई बार निकलेगा समेशन ऑफ वाई इंटू ए एंड ओवर समेशन ऑफ ए। तो इनको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें वाई बार मीन्स उसका जो हमें रेफरेंस नीचे से है, हमारे रेफरेंस से हमारा उसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। इसी तरह से आई एक्स हमारा निकलेगा, आई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एक्स बार, दैट मीन सेंट्रोइडल एक्सिस का, प्लस डी स्क्वायर ए। डी स्क्वायर ए जो है, डी मैंने बता दिया कि क्या होगा, डी इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार। यहाँ पे देखिए फार्मूले में भी दिखाया जा रहा है, इन उसका स्क्वायर इंटू ए। तो ए जो है अलग अलग एरिया निकलेंगे बॉडीज का, हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे। फार्मूलाज कुछ याद कर लीजिए। रेक्टेंगल का आई एक्स जो है वो पी एच क्यूब बाई 12 है। अगर हम नीचे के एक्सिस से निकालेंगे तो सॉरी वाई एक्सिस से निकालेंगे तो वो हमारा बनेगा बी क्यूब एच बाई 12, और नीचे वाले एक्सिस से निकालेंगे तो बी एच क्यूब बाई 3, और ऊपर वर्टिकल एक्सिस से निकालेंगे तो बी क्यूब एच बाई 3। और अगर ये किसी और एक्सिस से निकालेंगे तो जेड एक्सिस वाला होगा पोलर मोमेंट का, वहां से ये 1/12 बी एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इस तरह से निकलेगा। तो अभी के लिए आपने सिर्फ, मैं सिंप्लीफाई करना लगाऊं आपके लिए, तो रेक्टेंगल के लिए आपने बी डी क्यूब बाई 12 याद रखना है। रेक्टेंगल के लिए बी इज ब्रेड्थ एंड डी इज डेप्थ, या बी एच क्यूब बाई 12 ये याद रखना है। ट्राइंगल लगभग 1/3 होता है एक रेक्टेंगल का। देखिए आपको दिख ही रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल है ये एक उसका 1/3 दिख रहा है। तो बी डी क्यूब बाई 12 है तो बी डी क्यूब बाई 36 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर्कल का पाई बाई 4 आर की 4, पाई बाई 4 आर रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो कुछ इस तरह के हैं, ज्यादातर आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे पेपर में तो वो रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल पे ही, मोस्ट ऑफ देम आर रेक्टेंगल एंड सर्कल। तो रेक्टेंगल का बी डी क्यूब बाई 12 एक ही फार्मूला आपको नॉर्मली याद करना पड़ेगा। सेमी सर्कल के फार्मूले हैं, स्क्रीन पे पढ़े हैं, आपकी बुक्स में भी पढ़े होंगे, क्वार्टर सर्कल, इलिप्स भी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सम एग्जांपल। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आई एक्स। ये आपका एक तरह का एल सेक्शन है या इन्वर्टेड टी कहते हैं। तो इसका आई एक्स निकालना है एंड द रेडियस ऑफ जनरेशन। रेडियस ऑफ जनरेशन वो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ आई इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्र, ए इंटू आर स्क्र। तो आर हमने निकालना है। अब ये थोड़ा रिवर्स मेथड है कि पहले आई निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको ए से डिवाइड करके अंडर रूट करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। आई इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्र, याद होगा आपको फार्मूला जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। तो इसकी देखिए कि यहाँ पे हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसका 3 इंच 3 इंच है, और यहाँ पे 6 इंच एंड 2 इंच है। तो इसको 1 और 2 दो फिगर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी देखिए दो बॉडीज में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट बॉडी का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, 3 इंटू 6 18। वाई कितना होगा इसका, वाई अगर बॉटम से देखा जाए तो दैट विल बी 1, राइट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये सिमेट्रिकल है तो वाई से इसका 1 होगा। इसी तरह से जो दूसरी वाली बॉडी होगी, सॉरी 1 वाला नीचे वाला है एंड ऊपर वाला जो है वो 2 है।
तो इसका जो y एक्सिस होगा नीचे से 1 होगा, 2 का हाफ 1 होगा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 18 ही होगा, बिकॉज इट इज 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 है इसकी विड्थ है, और 2 इसकी हाइट है। तो इसका ये हो गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे a1 y1 इज इक्वल टू 18। अब i1 की अभी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू नहीं है, जब तक हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकलता, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता नहीं, तब तक हम इन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस सी 2 वाले का कैसे होगा 18। इसका भी 3 इंच तो चौड़ाई है और 6 इंच इसकी डेप्थ है, तो 3 इंटू 6 18 है। वाई इसका कितना है, बॉटम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 6 का आधा 3 बनता है और 2 नीचे से, तो 2 प्लस 3 इज 5, 5 तो इनको मल्टीप्लाई करके 90 आ जाता है। तो अब इनको टोटल करते हैं, 18 प्लस 18 36 एंड वाई आई का करते हैं तो 108 बनता है। तो y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ y a 108 बटे 36, दैट मीन्स 3 इंच। तो दैट मीन्स बॉटम से ए बी एक्सिस जो यहाँ पे दिख रहा है, ए बी एक्सिस से 3 इंच पे होगा। थोड़ा सा जहाँ पे इस वक्त कर्सर या एरो हेड दिख रहा है वहां पे उसको होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, आई हमें निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आई हम निकाल सकते हैं। आई अब कैसे निकालेंगे, जो नीचे वाला है दैट इज उसका हमारा होगा बी डी क्यूब या बी एच क्यूब बाई 12। तो बी कितना है हमारा, बी इज 3 प्लस 3 प्लस 3 9 है, और डी इज हमारी डेप्थ है, जो एच है 2 है। तो 9 इंटू 2 क्यूब हमारा 8 हो गया, 9 इंटू 8 बाई 12, 12 मैंने बताया बी एच क्यूब बाई 12, तो 9 इंटू 8/12, तो 9 इंटू 8/12 अगर देखा जाए तो वो हमारा 6 के करीब आ जाएगा, तो दैट विल बी 6। यहाँ पे जो हमारे को दिख रहा है आई बी एच क्यूब बाई 12 से 6 आ जाएगा। अब D1 कैसे निकलेगा, D1 इज इक्वल टू y1, इसका y कितना है, इसका y है 1, 2 का आधा ये 2 है, तो y इसका आधा 1 होगा, दैट मीन्स बॉटम से 1 होगा। लेकिन y बार कितना है, y बार हमने पिछले स्लाइड में निकाला था 3, तो 1 माइनस 3 इज -2, एंड इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल आएगा डी स्क्वायर हमारा 4 हो गया, एंड इंटू ए, 4 इंटू हमारा ए जो है हमारा 18 है, तो 4 इंटू 18 इज 72। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। तो करने के बाद हमारा क्या निकलेगा, ये हमारी वैल्यूज हैं वाई बार और आई, ये हम पहले ही लिख लेंगे आपस में, और ये जो है इसके बाद आई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारी कौन सी वाली है, ये हमारी पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका आई एक्स है, आई एक्स का समेशन है प्लस जो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस आता है, समेशन उनका सबका, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर इंटू ए, ये वाई बाई ये जो है हमारा ये यहाँ से आएगा, ये डी स्क्वायर ए जो है हमारा यहाँ से इनको ऐड करके 144 आ गया, और ये वाला जो है आई बार ये हमारा 60 यहाँ से आया, तो हमारा टोटल आई एक्स विल बी 204। सो इज इट क्लियर, अगर नहीं है तो इनको स्लाइड्स को पीछे करके दोबारा से आप चेक कर सकते हैं, या अपनी कॉपी पेन पे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन अब रेडियस ऑफ gyration मैंने बताया था, रेडियस ऑफ gyration के लिए आई एक्स इज इक्वल टू ए आर स्क्र है, एक फार्मूला है आई एक्स इज इक्वल टू ए आर स्क्र, तो आर एक्स वहां से निकाल सकते हैं। आई एक्स हमारे पास 234 आया, एरिया हमें पता है, एरिया हमारा 36 आता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दोनों का समेशन जो है 36 आया हमारा, तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो आर एक्स इज इक्वल टू 2.38 इंच, ये दूसरा आंसर आ गया। सो इज इट क्लियर, चले नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये तो थे दोनों को ऐड करना, एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है कंपोजिट एरिया का। अब यहाँ पे क्या है, 100 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर है, और यहाँ पे 100 मिलीमीटर दूसरी 150 मिलीमीटर डेप्थ है इसकी, और 25 मिलीमीटर के रेडियस का एक होल बीच में कटा हुआ है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट पार्ट्स में क्या करना है, दो ही वो ही लेने हैं, तो एक तो ये निकालेंगे रेक्टेंगल का,
और एक निकालेंगे इसका जो सर्कल है बीच में। सेंट्रॉइड ऑफ ईच एरिया इज लोकेटेड इन द फिगर, और वही टेबल बनाएंगे और उन दोनों का IX निकाल देंगे। IX जैसे इसका निकला, अब अगर सर्कल का देखें तो क्या निकलेगा सर्कल का, 1/4 π/4 25 इज द रेडियस, 25 रेज टू पावर 4 प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, और इसका डिस्टेंस क्या हुआ 75 स्क्वायर। आप कहेंगे 75 कैसे है, 75 जो इसके हमारे यहाँ से डिस्टेंस बनता है, इसका सेंटर का यहाँ से डिस्टेंस बनता है, वो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा 11.4 इंटू 10⁶ मिलीमीटर 4 आ गया। इसी तरह रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का तरीका हमने पहले बताया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, अब इनको समेशन नहीं करना, समेशन करें तो अगर उसको माइनस वाला ले लें, जो सर्कल वाले को माइनस ले लें, और सर्कल वाले के साथ जो है उसको ऐड कर दें रेक्टेंगल वाले को। तो 11.4 माइनस वाला है प्लस 112.5 ये है, तो ये हमारा 101 इंटू 10⁶ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आता तो दोबारा इन स्लाइड्स को पीछे मूव करके दोबारा से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।